Dear students, in previous paragraphs, we have got some information related to tooth, dead body, tomb, and the visitors and Pharaoh's curse. In this paragraph, we are going to discuss over the belief or faith of Egyptian and Carter and Howard Carter's role to find out to discover the mummy of tooth. Now listen the content carefully. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass. Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Howard Carter. That is why the British archaeologist who in 1922 discovered Tooth's tomb after years of futile searching, it contains, though hastily ransacked in antiquities, were surprisingly complete. They remain in richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. Stunning artifact in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. But Tooth was also buried with everyday things he would want in afterlife: board games, a bronze razor, line undergarments, cases of food and wine. Now, tooth dead body. We know that word mummy, the Egyptian coffin or dead body are known as mummy, is in very bad condition. What is the reason to be the coffin in a bad condition? Because of what Carter did. What Carter did with mummy so that it become very bad? We try to get the answer of this question. We try to get the reason in next lines. Said Zahi Hawass. This statement is made by Zahi Hawass. Now notice who is Zahi Hawass? Secretary General of Egypt's Supreme Council. Zahi Hawass is the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Notice the word antiquities. Antiquities means remains
ऑफ एंशिएंट टाइम्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट टाइम, जिसको हम लोग अवशेष कहते हैं, पुरातत्व से संबंधित जो अवशेष है, एंटीक्विटी जिसको कहते हैं। तो मीनिंग हो जाएगी इसकी रिमेन्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स। नाउ यू हैव गॉट द आंसर ऑफ हु इज जाही हवास। जाही हवास इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, and when he made the statement the mummy is in very bad condition time, when he leaned over the body for a long first look, Howard Carter, that is a British archaeologist. Word archaeologist, a person who studied the remains of ancient time, पुरातत्ववेदा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, पुरातत्ववेता, who in 1922 discovered Toothstump after years of futile searching. He made a number of attempts and spent many years in unsuccessful search, but he did not give up hope, and finally he discovered Toothstump. It contains, here word contains means treasures are things which were put with Tooth's dead body, though hastily ransacked in antiquity. Word ransacked, looted. So antiquity were surprising complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh legend. Stunning artifact in gold. The word stunning, surprising. What was surprising? The first artifact in gold, made by human hand. Their eternal brilliance, meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery. When his mummy or dead body was put on the ground, he noticed that a number of things are buried with dead body, and seeing that number of things, Howard told that it was the symbol of Egyptian belief in afterlife. Word resurrection, revived, get life again, caused a sensation. It was the main cause of his excitement, and still get the most attention. Tooth was also buried with everyday things he would want in afterlife. Here afterlife means second life या पुनर्जन्म का विश्वास। जैसे हम कहते हैं कि मरने के बाद हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ऐसा वहाँ विश्वास था, और इसलिए अपने जो दैनिक जीवन में आने वाली चीज़ें होती हैं, एवरीडे थिंग्स होती हैं, वो भी टूथ के डेड बॉडी के साथ दफनाई गई थी। जैसे एक बोर्ड गेम का नाम दिया है, या ब्रॉन्ज रेजर है, कार्टन अंडर गारमेंट्स अंडर ड्रेसेज हैं, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन है, केसे यानी बॉक्स होता है, फूड और वाइन। तो ये जो चीज़ें जो डेली वे में दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें थी, ये भी उस डेड बॉडी के साथ बरीड की गई थी, दफनाई गई थी। तो इसलिए उनके पुनर्जन्म में होने का जो एक फेथ था, विश्वास था, वो सामने आता है। तो इस पैराग्राफ में जाही हवास ने
उस डेड बॉडी के बैड कंडीशन में होने की बात कही है। अब आपको पता है जाही हवास कौन है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। अब उसमें दूसरा नेम जैसे है कि हावर्ड कार्टर, तो हावर्ड कार्टर कौन है, क्वेश्चन जैसे पूछ दिया गया हु इज हावर्ड कार्टर, आपकी रिप्लाई हो जाएगी कि हावर्ड कार्टर इज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। यू नो द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट study a person who studied the remains of ancient times, who discovered tooth tomb in 1922. After that, we see a number of things that we need in our daily life, and such things were also buried with his dead body. It means these lines show a belief or a faith in afterlife. The people of Egypt thought that the everyday things would be required in second life or in after death. So they buried the things with the dead body. After months of carefully regarding the pharaoh's funerary treasures, here funerary treasures that are buried with dead body, Carter spent months in investigated the treasures or things related to funerary, related to burial. Carter began investigating his three nested coffins, जो ताबूत थी, जो कॉफिन थी, उसके नेस्ट जो थे उसमें परत या लेयर की बात कर रहा है, बक्से की बात कर रहा है। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड, फर्स्ट बॉक्स लेड को जब ढक्कन को हटाता है कॉफिन का तो क्या देखता है, ए श्राउड, ए पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज sprayed over a dead body, a piece of cloth which is sprayed over dead body, यानी कफन जिसको हम लोग कहते हैं श्राउड। adorned का मतलब से डेकोरेटेड with garlands of willow and olive leaves, wild celery, name of plant celery, lotus petals and corn flowers. The faded evidence proof ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। कह रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ केयर करना है कि जो चीज़ें उसके साथ में दफनाई गई थी, जैसे उसका पीटल्स, लोटस पीटल्स की बात कर रहा है, कार्न फ्लावर्स की बात कर रहा है, या विलो और ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी की बात कर रहा है, तो ये जनरली टाइम इसलिए दे रहा है कि मार्च या अप्रैल, क्योंकि लगभग ये जो प्लांट होते हैं उसी समय में होते हैं, मार्च या अप्रैल में होते हैं, इसलिए एक अनुमान है कि उसको जो है मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, अब जब वो उस डेड बॉडी के फाइनली यानी 3 नेस्टेड कॉफिन में 2 लेयर हटा लेता है, 2 कह सकते हैं कि 2 लीड हटा लेता है, तीसरी कॉफिन में जब पहुंचता है तो उसके सामने एक बड़ी सी समस्या क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम क्या है, और द रिचुअल रेजिन्स, गूंद होती है रेजिन्स, हैड हार्डेंड सीमेंटिंग टूथ बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन। नोटिस करिए इसमें जो उसकी कॉफिन थी वो भी सॉलिड गोल्ड की थी, क्योंकि रूलर था इसलिए उसकी जो कॉफिन थी वो सॉलिड गोल्ड की थी, कॉफिन सॉलिड गोल्ड की थी। तो जो रेजिन्स था, जो गूंद था, वो बिल्कुल सूख गया था, हार्ड हो गया था, टफ। अब ये कह रहा है, हावर्ड कार्टर बता रहा है कि नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। कार्टर रोट, कार्टर ने लिखा लेटर आगे चल करके कि कोई भी जो लेजिटिमेट फोर्स होता है, जो लीगल फोर्स होता है, वो उसको नहीं हटा सकता था।
अब चूंकि उसको डेड बॉडी को कॉफिन से निकालना था, बाहर लाना था, तो अब क्या किया जाए, व्हाट वाज टू बी डन। तो पहला उसने अटेम्प्ट क्या किया उसको अलग करने के लिए कि उसको धूप में रखने का प्रयास किया। तो कह रहा है कि द सन कैन बीट तो ये कह रहा है कि जो रिचुअल रेजिन्स था वो इतना हार्ड हो गया था, सूख गया था कि टूथ की जो ओकांश जो उसकी बॉटम थी, जो निचली परत थी उसकी पीठ से लगी हुई बॉटम, तो सॉलिड गोल्ड कॉफिन से वो इतना इस तरह से हार्ड हो गया था, पकड़ लिया था। तो कह रहा है कि नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। कार्टर रोड, कार्टर ने लिखा है कि कोई भी लेजिटिमेट फोर्स से उसको अलग नहीं किया जा सकता था। व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाना था वही बताया है। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर फॉर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। यहाँ पर हीट, सन हीट जो है जैसे कि बीट लाइक ए हैमर। कार्टर ट्राई टू लूज द रेजिन। अब वो जो इस सन का, धूप का प्रयोग करता है उस रेजिन को लूज होने में, लूज द रेजिन्स, रेजिन जो है वो लूज हो जाए, ढीली पड़ जाए, इसके लिए वो धूप में उसको रखने का रखता है, धूप का की सहारा लेता है। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। केयर करिए कि धूप में जो डेड बॉडी उसकी रखी गई तो जो रेजिन थी, जो गोंद थी, वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हुआ। नथिंग बज्ड, इट इज नॉट मूव्ड, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको नीचे से नहीं छोड़ा, यानी लूज नहीं हुआ। He reported with scientific detachment to separate detachment to consolidated material had to be chiseled from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain। अब लास्ट में उसको चीजल करना पड़ता है, छेनी या रुखानी से उसको काट करके निकालना पड़ा। उसके आर्गन के, बॉडी आर्गन को या ट्रंक जो धड़ थी उसको काट काट करके टूथ के जो रिमेन्स थे उसको निकालना पड़ा। तो जो शुरू में आपने पहली लाइन देखा था कि नाउ द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर उसको निकालने के लिए कार्टर ने चेजल्ड किया और इस तरह से उसको टुकड़े टुकड़े काट करके उसमें से निकाला। और इस प्रकार से जो मम्मी थी, जो डेड बॉडी थी टूथ की, वो पूरी तरह से ख़राब हो गई, बैड कंडीशन में आ गई। तो इसको केयर करेंगे जो पॉइंट्स है उसको, और फिर अगली वीडियो में हम अगले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ओके।